ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਸ, ਇੱਕ ਤੜਪ, ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤਨਹਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ, ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹਮਵਾਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੇਰੀ ਢਾਰਸ ਬਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਢਾਰਸ, ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਕਤ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਸਹਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਸਹਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਬਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਵਕਤੀ ਸੰਗ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਗ ਹੈ, ਮਸਨੂਈ ਸੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਆਸਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਫਿਕਰੀਆਂ ਵਧਣ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਂ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰ ਜਿਓ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐ ਸੱਚੇ, ਐ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ। ਪਰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਹਰ ਵਕਤ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਕਲਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਧਰੇ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕਸਬੇ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ 2-4 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜੋ ਸਿਰਫ 2-4 ਫੁੱਟ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ
पूरे घर दे च भी नहीं है। पूरे पिंड की गल छड्डो, पूरे शहर की गल छड्डो, पूरे मुल्क की गल छड्डो, और पूरा संसार वो तो एक कमरे च बैठा है या बाहर बैठा है, सिर्फ 2-4 फुट जगह दे, इतनी उसकी पहुँच है, उसके हत्थां दी इतनी वो जो है अपनी समर्था रखता है। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो होवेगा किसी एक थां 2-4 फुट जगह च बैठा होवेगा। जिन्हों ने 2-4 फुट जगह च या एक कमरे च मन लिया, नामदेव ने उन्होंने अंधा कह दिता है। पर जिन्हों ने व्यापक ते मन लिया पर सिर्फ एक दिशा दे च मनिया, बाकी 3 दिशावां च नहीं मनिया, तो नामदेव ने उन्होंने काना कह दिता। ये भी पूरे सुजाखे नहीं, दिन लथे की तरफ मनते हैं, बाकी 3 दिशावां च नहीं। ये बिल्कुल अंधे ने, एक कमरे च ही मनते हैं। गुरु एक कमरे च नहीं है, प्रभु एक कमरे च नहीं है। गुरु सिर्फ एक पिंड दे च भी नहीं, एक शहर दे च भी नहीं है। गुरु सिर्फ एक मुल्क दे च भी नहीं है। जो सर्वदेशी नहीं वो परमात्मा नहीं है, जो सर्वदेशी नहीं वो गुरु नहीं है। गुरबाणी की रोशनी च ये मैं थोड़े सामने वाक रख रहा हूँ। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सदा संग। अगर व्यक्ति है तो सदा संग नाल नहीं हो सकता, हर वक्त नहीं हो सकता। और मैं फिर अर्ज करा, जो सदा संग नहीं वो परमात्मा नहीं है, जो सदा संग नहीं वो गुरु भी नहीं है। प्रभु ने सानू अकल दी है, इस वास्ते दी है संसार नू समझ सकीए, निरंकार नू समझ सकीए, परिवार नू समझ सकीए, गुरु नू समझ सकीए, झूठ नू समझ सकीए, सच नू समझ सकीए, अंधेरा वेख सकीए, चानना भी वेख सकीए। बदकिस्मती है साड़ियाँ ये अखां बाहर दा हनेरा, बाहर दा चानना वेख लैंदियां ने, धर्म दा प्रकाश ते धर्म दा अंधकार नहीं दिखाई देता। पाखंड धर्म दा अंधकार है और बहुत व्यापक रूप विच मौजूद है। राजनीति दे च भी चानना है, राजनीति दे च भी अंधेरा है। जिहड़ी राजनीति लोगों के सिरां नूं अपने पैरां थले लिताड़दी जाए, राजनीति दा अंधकार। और जिहड़ी राजनीति लोगों के सिरां दी रक्षा करे, धर्म राजनीति दा चानना प्रकाश। अंधेरा परिवारक जीवन विच भी हो सकता है, अंधकार ते प्रकाश परिवारक जीवन विच भी हो सकता है। कईयां दे समाजिक जिंदगी च निरा ही अंधकार है, कल कलेश। पति पत्नी का संबंध ते है पर कलेश दा, प्यो ते पुत्र का संबंध ते है पर लड़ाई झगड़े का, वितकरियां का, लोभ का। भरा भरा का रिश्ता ते है पर खड़ा है वंड ते, खड़ा है दुबदा दे, खड़ा एक दूजे नूं चोट पहुँचाण ते। रिश्ते तो है गए ने, संबंध तो है पर यह अंधकार का संबंध है। प्यो पुत्र लई सहायक होवे, पुत्र पिता लई मददगार होवे, भरा भरा दी बांह बने, और भैन भरा दी राजदारी होवे, तो ये समझ लो समाजिक दुनिया दे चानना है। राजनैतिक दुनिया का चानना, जिहड़ी राजनीति लोगों के सिरां की हिफाजत करे, ये राजनैतिक चानना जो राजनीति लोगों के सिरां नूं कुचल के रख देवे, तबाह करके रख देवे, बर्बाद करके रख देवे, वो राजनैतिक अंधकार है। चंगेज खां जिथों लंघदा सी, बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी। हलाकू जिथों लंघदा सी, उसदे घोड़े लाशां तो लंघदे सन। गालबन 2 करोड़ मनुखों का कातल है हिटलर। 2 करोड़ बंदियां नूं कबर दे च पहुंचा के रशिया दे च क्रांति आई सी। ये राजनैतिक अंधकार,
लोगों के सिरां नूं कुचलो, राजनीति चलाओ। घर दे कल कलेश मचाई रखो, एक दूजे दे उत्ते कोई एतवार नहीं, समाजिक जिंदगी का अंधकार। झूठ है, फरेब है, दिखावा है, सिर्फ एक थां ते है, सर्वदेसी नहीं, सर्व व्यापक नहीं, पर दावा है परमात्मा होने का, दावा है गुरु होने का। पखंड ये धर्म का अंधकार है। मैं अर्ज करा, गुरु होने का भी व्यक्तियों ने दावा किया है, परमात्मा होने का भी दावा किया है। हरनाकश ने कह दिता सी, मैं ही परमात्मा। कौन होता है परमात्मा? कोई भी नहीं। नमरूद ने कह दिता सी, कौन होता है खुदा? मैं खुद खुदा। मिस्र दे उस बादशाह ने। ये मुहम्मद साहब तो थोड़े जिहा बाद होया, इन्हें साफ कह दिता, मैं ही खुदा। खुदा कौन होता है? और मैं दोहरा दें, अज तो कोई 10-12 साल पहले सरदार खुशवंत सिंह ने एक लेख लिखिया सी कि भारत विच गालबन 84 बंदे ऐसे ने जो अपने आप को भगवान कहते हैं। ये गल वखरी ने कि उहदे च 2 भगवान अमेरिका चले गए तो 2 भगवान मर गए ने, बाकी मौजूद, बाकी है गए ने। गुरु होने की तो गल छड्डो, मनुख ने भगवान होने के दावे किए ने, परमात्मा होने के दावे किए ने। अकबर का राज जद सारे हिंदुस्तान ते हो गया, उहदे हत्थों च बड़ी शक्ति आ गई, तो अकबर नूं उस जमाने च कहंदे सन महाबली। और हिंदू समाज इतना गिर गया सी कि राजा मान सिंह वालिए जयपुर ने अपनी भैन का रिश्ता अकबर नाल कीता। वो हिंदू धर्म का चिराग राजा मान सिंह वालिए जयपुर, उदी भैन जोधा बाई अकबर दी बेगम है। राजपूत सारे झुक गए और राजपूत अपने डोले मुगलों को देन लग पे। इस तरह हिंदू धर्म मिटता गया। और जब अकबर ने देखा कि सब तो शक्तिशाली ते राजपूत ने, यही झुक गए ने, सारा हिंदुस्तान मेरी मुट्ठी च, मैं महाबली, ये अंदर भी खुदा बनन दा ख्याल पैदा होया। फिर ऐसा ख्याल आया, जे मैं खुदा होने का दावा किया तो लोग मैनू मूर्ख आखणगे, चलो मैं पैगंबर बनना। पैगंबर, क्योंकि पैगंबर फिर भी राजियां नालों वड्डा है, बादशाहां नालों वड्डा है, और उहदी होंद हमेशा रहिंदी है, मरण तो बाद भी पूजिया जाता है। तो अकबर ने बकायदा एक मजहब चलाया, उहदा नाम सी दीन इलाही। और उन्हें बहुत सारे जिन्होंने रतन कहता सी अपने दरबार दे, ये धर्म कबूल करने ते मजबूर किया। उन्होंने नाम भी बदले। स्वामी हरिदास का चेला सी, महान संगीतकार तानसेन नाम अकबर ने रखे। मुल्ला दो प्याजा सी, जनाब फैजी सी, राजा मान सिंह सन, कवि रहीम सन, बड़े बड़े कीमती मनुख जिन्होंने अकबर कहा करता सी ये मेरे रतन ने। विद्या दे च, गुणां दे च, ज्ञान दे च, शक्ति दे च, ये सारे अगे सन। ते अकबर की सोचनी पहले ये झुकन, पहले ये मनन, बाकी आपे मन लैणगे। पखंड ते झूठ की पहले कोशिश आउंदी है कि गुणवान झुके, एक धनवान झुके, बाकी आपे झुक जाणगे, बाकी आपे मन लैणगे। झूठ ते पखंड अगर ताकत दे च होवे तो उसकी कोशिश ये आउंदी है, पहले गुणवान झुके, पहले धनवान झुके, निर्धन ते आपे झुक जाणगे। पहले गुणवान झुकन, मूर्ख ते आपे झुक जाणगे, नादान लोग ते आपे झुक जाणगे। जो अकबर ने तरीका वरत्या, अजोका पखंड भी यही तरीका वरतदा। पहले कवियां नूं काबू करो, लिखारियां नूं काबू करो, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ काबू करो, इलम दे धनियां नूं काबू करो, धनवाना नूं काबू करो, बाकी दुनिया ते आपे आएगी। भेड़ा चाल है जगत की। तो 9 रतन उस वक्त भारत दे चोटी दे मनुख, तानसेन
ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਰਹੀਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਤਨ। ਇਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ। ਝੁਕਾਇਆ ਇਸਨੇ। ਫੈਜ਼ੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਜੂਮੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਭੂਚਾਲ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੂਫਾਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਝੁਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੁਕੇ। ਝੁਕ ਗਿਆ ਫੈਜ਼ੀ ਵੀ, ਝੁਕ ਗਿਆ ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹਾਪੰਡਿਤ ਬੀਰਬਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਰਹੀਮ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ 1200 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਰਾ ਰੰਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਸਾਰੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜੋ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰੀਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 10 ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ 'ਚ ਗੇਂਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਰੰਗ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਾਰੀਕੀ ਹੈ। ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ 'ਚ
जितनी गहरी दृष्टि एक साइंटिस्ट कोल है आम बंदे कोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक विज्ञानक, एक साइंटिस्ट जो किसी पदार्थ की गहराई दे झात मार लेंदा है और गहरा चला जाता है, तो जिहड़े उसनों पदार्थ के राज दिखाई देंदे ने आम बंदियां नूं कित्थे दिखाई देंदे ने? बिल्कुल नहीं दिखाई देंदे। ये गल वखरी है कि शुरू दे ते इस तरह की साइंटिस्ट भी जब कोई नारे लाते हैं तो दुनिया सहमत नहीं आती। जैसे गलेलियो ने कह दिता सी, जमीन चपटी नहीं गोल है, ये साकन नहीं, रुकी हुई नहीं, घूम रही है। उस वक्त दे पादरियां ने कह दिता सी कुफर बोलता है, ये बाइबल तो उल्ट बोलता है। साड़ी बाइबल कहती है रुकी हुई है, साड़ी बाइबल कहती है ये चपटी है, और साड़ी बाइबल कहती है ये गालबन 4000 साल होए, 4000 साल पुरानी गल बनी है। ये गलेलियो कहता है नहीं, अरबा खरबा साल होए ने बनी है। ये कहता है गोल है, ये कहता है घूम रही है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, जिन्होंने ने इतिहास पढ़िया होना है, इस बुढ़े साइंटिस्ट नूं जेल की तंग तारी कोठड़ी सुट दिता गया सी। आखिया सी अपने बोल वापस ले, पर वह तरले लेंदा रहा, मैं एक दूरबीन बनाई है, मेरे नाल उपर गुंबद ते चढ़ के जरा देखो तो सही, जमीन नूं संसार नूं वेखण दी कोशिश करो। इस दूरबीन दे नाल तुहानूं अंदाजा होवेगा जमीन गोल है, चपटी नहीं है, ये रुकी हुई नहीं, ये घूम रही है। तो पता है पादरियां ने की आखे, शैतानी आला है, साडी शरदा डुलांदा है, ये शैतानी आला है। गुरु दी ये विचार जद मैं इस ढंग नाल भारत के कोने कोने च रखी, गुस्ताखी माफ, सुभाव गल आ गई जबान ते, इस वास्ते मैं पिछे ना लवां। मेरे खिलाफ भी एक किताब छापी गई 600-700 सफ़े की, और उस किताब का नाम है एक वड्डे ढोल का पोल खोल दिता, मुफ्त वंडी गई। उंज कोई छपाए तो घट तो घट 3-4 लाख रुपए का उसके खर्च है। जितनी वो वंडी गई, जितना सोना उसका टाइटल बनाया गया, और उस दे च मैं गिणती की घट तो घट 500 तो वध गालां मैनू कढ़ियां गई उस लेखक का नाम भी सब कुछ। कसूर मेरा ये क्यों कहता है गुरु व्यापक है? गुरु व्यापक नहीं है, गुरु एक कमरे च बैठा है, गुरु एक शहर दे च है, गुरु एक पिंड दे च है। ये क्यों कहता है? ये खास करके सिंधी समाज दी ते बहुत वंडी गई, बहुत तकसीम की गई, सुभावक गल आ गई। ये गल वखरी है कि उस बहुत वड्डियां धमकियां भी अखीरले पेज दे उत्ते, एवं सुभावक गल आ गई। गलेलियो एक बुढ़ा विचारा 78 वरियां दा सी जद उन्होंने बेड़ियां ते हथकड़ियां पहना के जेल की तंग तारी कोठड़ी च बंद कर दिता गया। कसूर कहता सी जमीन घूमती हुई मैनू दिखाई देती है, जमीन गोल है। तो उस वक्त दे मजहबी बंदियां ने, उन्हां मजहबी मनुखा ने जिन्होंने सच की खोज नहीं की सी, झूठ की पूजा दे उन्हां दी मान प्रतिष्ठा बनी हुई सी, उन्हां दी रहबरी बनी हुई सी। और झूठ का भी कोई रहबर बन जाए तो वो पिछे चलन वाले अवन तो मनुख रहबरी त्यागण नूं तैयार नहीं, चाहे झूठ दी है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हंकार की पूजा होंदी, हंकार वधदा है। और फिर रहबरी झूठ दी मिल जाए तो झूठे पिछे चल रहे होन, तो क्योंकि झूठ की गिणती भी बहुत ज़्यादा है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, कौन छोड़ेगा ये चौधरीपना? पादरी मुखी सन, सन्मान सी उन्हां दा, सत्कार सी, उन्होंने बंद करा दिता और आख्या 7 दिनों के अंदर अंदर अपने शब्द वापस ले। दूरबीन उसकी तोड़ दी गई सी, ये शैतानी आला है, तोड़ दी गई सी। 7 दिनों के अंदर अपने शब्द वापस ले, नहीं तो सजाए मौत, तेन मार देंगे। और
निहत्था, बेआसरा, ये चिंतक, ये दार्शनिक, ये फिलोसफर ते साइंटिस्ट, इन्हें देखिया चलो शब्द अपने वापस लेने, खोज जारी रखते हैं, किसी दिन ते संसार नूं असलीयत का पता चलेगा। इन्हें इस ढंग नाल अपने शब्द वापस ले, मैं अपने शब्द वापस लेना, की पता है इस प्रकृति दे चों सच्चाई वापस आउंदी है कि नहीं, वो मेरे वस की गल नहीं। चलो मैं शब्द वापस ले लेना, पर ए दुनिया के लोगों एक गल समझ लो, मेरे शब्दां करके जमीन नहीं घूम रही, मेरे बोलन करके जमीन गोल नहीं। मैं आख दिता है गोल है, मेरे कहण करके गोल नहीं, ये गोल है तां मैं कहना, ये मेरे कहने करके नहीं चल रही, ये चल रही है इस वास्ते मैं कहना। पर चलो जमीन का चलना तुसी रोको, जमीन का गोल होना तुसी मिटाओ, शब्द मैं वापस ले लेना। अज बच्चा बच्चा पढ़ता पे जमीन गोल है, अज बच्चा बच्चा पढ़ रहा है जमीन घूम रही है। एक साइंटिस्ट नूं जो दिखाई देंदा है आम मनुख नूं नहीं दिखाई देंदा। रंगां दी बारीकी जो एक चित्रकार नूं दिखाई देंदी है आम मनुख नूं नहीं दिखाई देंदी। आम बंदे ने कह देना चित्रकार पागल है जो कहता पे 10 दे 10 दरख्त जिहड़े खड़े ने इन्हां सारियां दे रंग अलग ने, ये ते हरे ने, पत्ते सारे हरे ने, ये कहता वख वख रंग ने, और वो कहता नहीं वख वख रंग ने, उहदे कोल दृष्टि है। और मैं ये नेड़ियों एक चित्रकार नूं देखिया, होशियारपुर की गल, एक दरिया के कंढे शहर के कोल एक बरसाती नाला वगदा है, पर वो बरसातां के दिनों दरिया की शक्ल धारण कर जाता है, बहुत वड्डा है, बिल्कुल किनारे ते ही वगदा है, उसके कंढे ते ही शहर है होशियारपुर पंजाब का। उसके कंढे ते वो तस्वीर बना रहा सी वगदे हुए दरिया की ते आले दुआले दरख्त। लेकिन मैनू हैरानगी जब मैं रोज़ सैर करन नूं जावां ते रोज़ ही लगे हुए दरख्त बनाने दे तस्वीर काफ़ी बनी हुई। तो मैं सुभाविक एक दिन पूछ लिया, बजुर्ग सी वड्डी उम्र का सी, मैं कहा बजुर्ग तस्वीर तो बिल्कुल बनी हुई है पर फिर भी तुसी रंग भरते रहंदे हो, गल की है? कहंदे मैं हू बहू जिवें दरिया के कंढे ते दरख्त ने इस तरह बनाना चाहना। मैं कहते बने हुए ने? कहंदे नहीं, सारियां दे रंग वख वख ने, तो ये जो अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं ऐ मैं भरने ने। उदों मैनू हैरानगी हुई, सारा सफेदा खड़ा है, अंब दे दरख्त खड़े ने, हरे खड़े ने, पर इनू अलग अलग रंग दे दिखाई दे रहे हैं। चित्रकार वो रंगां दी बारीकी च जांदा है। जितना भेद रंगां दे एक चित्रकार नू दिखाई दे जाता है और किसी नू नहीं। पदार्थ दे राज जितनी गहराई नाल एक साइंटिस्ट वेख लैंदा है आम मनुख नू नहीं दिखाई देंदे। और एक गहरा चिंतन करने वाला, अभ्यास करने वाले मनुख नू जो गुरु ते परमात्मा की झलक दिखाई दे जाती है, यकीन जानो आम मनुख नू नहीं। आम मनुख ते जगत की भेड़ा चाल। सच नू किसी सहारे की लौड़ नहीं पैंदी, झूठ नू सहारे की लौड़ पैंदी है। झूठ हमेशा सहारा लगता है। गुणवान कौन है, धनवान कौन है, पहले इसनू झुकाओ बाकी आपे झुकणगे। तो अकबर की कोशिश ये बीरबल झुके, ये तानसेन सजदा करे, ये फैजी हाथ जोड़ के खड़ा होवे, और ये राजा मान सिंह मैनू मत्था टेके, मैनू पैगंबर तस्लीम करे। और आप सुन के हैरान होवोगे, सारे तस्लीम कर दे गए। शक्तिशाली सी, ताकत सी उसदे कोल, सारियां जगीरां दित्तियां होईयां अकबर दियां। महीने दे महीने 1000-1500 मोहरां मिलदियां अकबर कोल। अकबर करके दुनिया उन्होंने सलाम करती सी, और वह भी रहबर बने हुए सन अपने अपने दायरे दे। तो अकबर नाल तोड़ के बाहर की जिंदगी की मुसीबत कौन लवे ते अपजस कौन खटे। लेकिन रहीम सीना तान के खड़ा हो गया, कहने लगा
अकबर मैं बादशाह जान के तेनों सजदा भी कर सकदा, सलाम भी कर सकदा, जबकि उम्र नालों मैं तेरे नालों बहुत वड्डा। और उन्हें एक होर सच्चाई भी कह दी, ईश्वरी ज्ञान नालों मैं तेरे नालों कई गुणा अगे हाँ, तेनों कुछ भी पता नहीं खुदा दा, फिर भी मैं तेनों सलाम कर सकदा क्योंकि तेरे कोल बाहर की ताकत बहुत ज्यादा है, तू बादशाह है, मैं तेरा सन्मान कर सकदा। लेकिन तू आखे पैगंबर, पैगंबर जान के मैं मत्था नहीं टेक सकता। मत्था टेकना गुनाह नहीं है, मां नूं मत्था टेकिया जा सकता है, पिता नूं मत्था टेकिया जा सकता है, वड्डे भरा दे कदम बोसी की जा सकती है, किसी को विद्या थोड़ी बहुत सीखी है उसकी कदम बोसी की जा सकती है। कोई सिख अभ्यास दे अगे चला गया तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जो दी से गुर सिखड़ा तिस नेव नेव लागों पाए जी। मैं बादशाह जान के तेनों सजदा भी कर सकदा, सलाम भी कर सकदा, जबकि उम्र नालों मैं तेरे नालों बहुत वड्डा। और उन्हें एक होर सच्चाई भी कह दी, ईश्वरी ज्ञान नालों मैं तेरे नालों कई गुणा अगे हाँ, तेनों कुछ भी पता नहीं खुदा दा, फिर भी मैं तेनों सलाम कर सकदा क्योंकि तेरे कोल बाहर की ताकत बहुत ज्यादा है, तू बादशाह है, मैं तेरा सन्मान कर सकदा। लेकिन तू आखे पैगंबर, पैगंबर जान के मैं मत्था नहीं टेक सकता। मत्था टेकना गुनाह नहीं है, मां नूं मत्था टेकिया जा सकता है, पिता नूं मत्था टेकिया जा सकता है, वड्डे भरा दे कदम बोसी की जा सकती है, किसी को विद्या थोड़ी बहुत सीखी है उसकी कदम बोसी की जा सकती है। कोई सिख अभ्यास दे अगे चला गया तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जो दी से गुर सिखड़ा तिस नेव नेव लागों पाए जी। भरा जान के, उस्ताद जान के, पिता जान के, गुरु जान के नहीं, परमात्मा जान के नहीं। उदों झुकना अज्ञान आश्रित हो जाता है जब कोई किसी को भगवान जान के मत्था टेके, गुरु जान के मत्था टेके। और टेकना है तो फिर एक गल चेते रख, गुरु व्यापक है, प्रभु व्यापक है। जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं, और जो व्यापक नहीं वो गुरु भी नहीं। गुरु मेरे संग सदा है नाले, मैं जिस घर दे चां उस घर दे गुरु नहीं है तो मेरा मददगार किस तरह हो सकता है? हो सकता है मैनू मेरे घर दे ही विपता हो जाए, वो अपने घर बैठा अपने कमरे मेरा किस तरह मददगार होगा? अगर परमात्मा किसी 7वें आसमान ते बैठा है, मैनू इस जमीन के उत्ते ही अड़चन खड़ी हो गई है, तो मेरा मददगार मनुख दे प्राणा दी ये प्यास है, मेरा सहायक हर वक्त मेरे नाल होवे, मेरा आसरा हर वक्त बनिया रहे, और मैं जिंदगी दे बेआसरा कदी भी ना आवां। तो बेआसरा वो मनुख कतई नहीं आता जिहड़ा उसका आसरा पकड़ लेंदा जो व्यापक है ते सदी भी है, हर वक्त है ते हर थां ते है, हर वक्त ते हर थां केवल परमात्मा है, हर वक्त ते हर थां केवल गुरु है। और आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, अकबर नूं गल बड़ी खटकी सी रहीम दी, पर रहीम दा एक छोटा जिहा एहसान भी सी अकबर दे उत्ते। कनौज दे मैदान दे जद हुमायूं शेरशाह सूरी तो जंग हार गया, ये नसिया अपनी जान बचाने दा असफान, ईरान दा शहर असफान, उदा सौरा उत्थे रहिंदा सी, छोटा जिहा बादशाह सी, ये मदद लई उधर भजे। गोविंदवाल दे पत्तन ते ब्यासा इसने पार किया है। खंडूर दे गुरु अंगद देव जी महाराज दे दर्शन भी किए, किसी ने प्रेरिया सजदा करदा जा, भावें हारिया होया सी पर बादशाही आकड़ मौजूद सी। सतगुरु बच्चियां नूं अखर जिन्हां असी गुरमुखी कहने आ पढ़ा रहे सन। गुरु अंगद देव जी महाराज आकड़ के उच्ची खंग मार के हुमायूं सतगुरु दे अगों खड़ा होया ते सोचदा सी जिवें आम फकीर मेरे सन्मान लई खड़े आउंदे ने, भावें दिखावे दे तौर ते मैं उन्हां दा सन्मान करदा, वास्तविक वो करदे ने, ये भी खड़े होणगे।
ਇਹ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਆਓ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਚਲਾਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਇਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਭੱਜ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਚ ਲੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਉੱਥੇ ਕੱਢਦਾ। ਤੂੰ ਕਾਇਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੂੜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਚ ਲੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੂੰ ਕਾਇਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੂੜ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਗਿਰ ਗਈ, ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ। ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਸਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਚ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਰਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਾਇਰ ਔਰ ਮੂੜ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਚ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭਜਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਜਦ ਨਸਿਆ ਉਦੋਂ ਅਕਬਰ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਰਹੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਰਹੀਮ ਪਠਾਨ, ਕਾਬਲੀ ਪਠਾਨ, ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੀ, ਦੌਰਸ਼ਨਿਕ, ਚਿੰਤਕ, ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣਾ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਹੀਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹੀ ਅਕਬਰ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੰਜ ਚੁਕਾਇਆ, ਕਵੀ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਖਾਨੇ ਖਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਰਹੀਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਿਆਣਪ। ਪਰ ਜਦ ਅੱਜ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕਸਕ ਲੱਗੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਵੀ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਮਜਬੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। जैसे जहांगीर सिंहासन ते बैठा है, सारी जगीर इस रहीम दी जबत कर ली जहांगीर ने। औदा खो लिया, बंद किया, मौत सुनाई। सूफी फकीरां दी बेइतनी वड्डी सजा, बेकसूर। सिर्फ इतना ही है ना, पैगंबर नहीं मनिया, थोड़े प्यो नूं सजदा नहीं किया, इन्ना ही कसूर है ना।
कि होर कोई कसूर। लेकिन घर घाट तबाह कर लिया, हवेली कोलों खो लई, सब कुछ खो लिया। कल्ला अज तनहा जेल दी तंग तारी कोठड़ी चों निकले। और जहांगीर ने हुक्मन जो कि है घट तो घट 500 कोस मेरी होन तो दूर हो जा, जिथे मैं होवां 500 को मेरे नेड़े ना होवे, दूर रहे। 500 को घट तो घट 1000 मील बनता है, इतना दूर चला जा जिथे तेरी कोई सूं खबर मेरे तक ना पहुंचे। इतना अग नाल भरिया होया जहांगीर। ये दानी सी, ज्ञानी सी, जेल तो बाहर निकलिया, कुछ लोड़वंदा ने घेर लिया। इन्हें हथ जोड़ के आख्या, या रहीम दर दर फिरे, मांग मधुखरी खाए, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है। ऐ मेरे मित्रों, लैण करके तुसी लैण करके जो मेरे नाल नाता जोड़िया होया सी वो तोड़ लो। मैं हुण देण जोगा नहीं हाँ, कुछ नहीं दे सकता, मेरे हथ खाली ने, मेरे कोल कुछ भी नहीं। लैण करके जिहड़ी मेरे नाल तुसी मित्रता बनाई सी, रिश्तेदारी बनाई सी, वो तोड़ लो। जद मैं दे ही नहीं सकता, मेरे कोल कुछ है ही नहीं। या रहीम दर दर फिरे, मांग मधुखरी खाए, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है। बहुत वड्डा कीमती ग्रंथ है, उन्होंने कहते रहीम दोहावली, रहीम दोहावली। एक एक दोहा इसका बड़ा कीमती, एक एक दोहरे दे इसने बड़ा भारी ज्ञान भरिया। ये चला गया रीवा, मध्य भारत का एक छोटा जिहा शहर, अजकल किसी वक्त रजवाड़ा सी, रियासत सी। ये उत्थे पहुंचे और उत्थे एक भड़बूंजा दाने पिया भुन्ने। बस समाप्ति कर दें। इस विचारे नूं भुख लगी, 3 दिन का पैदल चल रहा है और 3 दिन का रस्ते च कुछ भी नहीं मिलिया। जंगली इलाका सी, पगडंडी चो चलदा आया बेचारा। रस्ते सरोवर दरियावां का पानी तो पी लिया, खाण नूं कुछ ना मिले। रीवा तक पहुँचदियां भुख ने घेर लिया। भड़बूंजा दाने भुन रहा सी, मकई दे चने ये भुन रहा सी। तो सोचिया कुछ मिल जाए, पर जमीर नहीं मनी मंगण नूं। कोल बैठ गया तो लकड़ा पट्ठी दे पाण लग पिया। चलो कम करके कुछ इस दे कोल लवांगे। भड़बूंजे दा कम पिया करदा है, लकड़ा पट्ठी च पिया पांदा है ते दाने उछल के जेड़े पट्ठी चों बाहर गिरदे ने उन्हां नूं चुक के मूँह च पांदा है। अपनी भुख मिटाण की इंज कोशिश कर रहा है, अपनी जमीर नूं समझाण की खातर कि एक एक दाना जो मैं चुन के खा रहा, इस भड़बूंजे ने तो चुनना नहीं सी, बाहर गिर रहे हैं, पर मैं इहदा कम कर रहा, कम दे बदले चुक रहा, उंज नहीं। एहसास इस तरह अपने दिल नूं समझांदा है। रीवा महाराजा, रीवा नरेश हाथी ते बैठिया लंघिया, उन्हें पहचान लिया, रब ना भुलावे ये रहीम है। ये तो कवि रहीम है, ये तो जहांगीर दा सैनापति सी, ये तो अकबर दा होम मिनिस्टर सी, घरेलू मामलियां दा वजीर सी, वजीर खाने खाना। ये तो इतने उच्चे अहदियां ते रह चुके है और ये बहुत सियाणा पुरुष है। ये ते कीमती लिखे हुए ग्रंथ ने। ये किस हालत दे हाथी ते बैठे ही रीवा नरेश ने सुभावक अपनी जबान तो कह दिता, जां के सर अस भार, सोकत झौंकत भार अस। जिहदे सिर दे उत्ते सैनापति दा ताज सी, जिहदे सिर दे उत्ते घरेलू मामलियां दे वजीर दा मुकुट सी, वो भट्ठी किवें झौंकदा पिया, बालन किवें डारे। जां के सर अस भार, सोकत झौंकत भार अस। रहीम कवि से उन्हें मिसरे नाल मिसरा जोड़ दिता, रहमन उतरे पार, भार झोंक सब भार में। ऐ रीवा नरेश, सिर दे उत्ते जितना भार सी इस भट्ठी च पा दिता है, जला के खाक कर दिता है। हौला हो गया, हल्का हो गया।
ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ, ਪੱਠ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰ ਝੋਂਕ ਸਭ ਭਾਰ ਮੈਂ। ਇਹ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਹਾਪੰਡਿਤ ਰਹੀਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਠਾਨ, ਕਾਬਲੀ ਪਠਾਨ, जिन्हें बड़े बड़े ग्रंथ लिखे ने। और तुलसी तक ये खबर पहुँच चुकी सन कि सब कुछ इसका तबाह हो चुके है, बर्बाद हो चुके हैं। हालात मुफलिसी दे ने, दर दर भटक रहे। 100 कदम की दूरी रह गई है तुलसी दी ते रहीम दी। ते तुलसी दे कन्नां च तुलसी दे शागिर्द कहते ने, ओ जो आ रहा है कवि रहीम, फकीर रहीम, वक़्त दा चोटी दा फकीर और उस तो पहले दा घरेलू मामलों दा वजीर ते सेनापति, वो आ रहे। कहते जब 10 कदमां दी दूरी रह गई तो सामने 2 हाथी खड़े सन। अक्सर तीर्थां ते मंडलेश्वर राजे महाराजे हाथियां ते बैठ के आउंदे सन। हाथी दी एक फितरत है कि जिथे खड़ा होवे मिट्टी अपनी सूंड नाल पुटदा है ते सिर ते पांदा है। तुलसी ने एकदम हाथी नूं वेख्या, रहीम नूं वेख्या ते बोल पे, धूर धरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें काज। ऐ रहीम मैनू दसेगा ये हाथी इस तरह क्यों करता है? मिट्टी पुटदा है सिर ते पांदा है, मिट्टी पुटदा है सिर ते पांदा है, जिथे खड़ा होवे ऐसा ही करता है, ये क्यों करता है? रहीम मुस्कराए पहले भी ये कवि वक़्त दा ये पंडित ते भगत उंज मैनू गल नाल लाण नूं तैयार नहीं। देखना चाहता मैं कवि हाँ कि नहीं, मैं कोई जवाब दे सकदा कि नहीं। जब तुलसी ने कहा धूर धरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें काज। रहीम बोल पे, जह रज मुन पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। जिस दे चरना दी धूड़ दा सदका गौतम ऋषि दी नार अहिल्या दा उधार होया सी ना, ये हाथी ओही धूड़ लभदा फिरदा है। इस वास्ते सारी जमीन पुटदा है, मतां किधरे राम दे चरना दी खाक होवे मेरे मत्थे ते पै जाए। इत्थे ओ लभ रहा है। कहंदे चीख निकल गई तुलसी दी। उन्हें अपना मस्तक रहीम दे कदमां ते रखिया। कहंदा इस हाथी नूं पता नहीं राम दी धूड़ लभणी है कि नहीं, तेरे चरनां दी धूड़ राम दी धूड़ है, लभ पई है। तेरे हिरदे च इतना ज्ञान और तेरे हिरदे च इतना प्रेम, तेरे हिरदे च इतनी भक्ति, इतनी सूझ, इतनी समझ, बाकी ख्यालात दा जो विचार वटांदरा होया है, ऐसे ऐसे ज्ञान दे दोहे इस रहीम ने रखे ने। तुलसी ने स्वयं तस्लीम करना पिया तो वक़्त दा पंडित है, वक़्त दा सियाणा पुरुष है। इसने ऐलानिया कह दिता अकबर तू बादशाह है, पैगंबर नहीं, खुदा ने मैनू अख दी है, मैं किस तरह तेनू पैगंबर मान लवां। जैसी अख रहीम कोल सी, जैसी अख मक्खण शाह लबाणे कोल सी, हर एक कोल नहीं आउंदी। इस वास्ते अंधकार पूजनीक बन जाता है, पखंड पूजनीक बन जाता है। परमात्मा की थां ते अनर्थ पूजिया जाता है, गुरु की थां ते अंधकार पूजिया जाता है। गुरु ओ जो व्यापक, प्रभु ओ जो व्यापक, और किस ढंग नाल व्यापक ने, इसे गुरबाणी की रोशनी च। और ये ओ शब्द, ये ओ बोल जिदे बारे ये विचार के सिद्धे प्रभु तो आए। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान वे ला लो। इस खसम की बाणी दे राही खसम दी ते खसम नूं पहचानण वालियां दी विचार तुझ बुद्धि अनुसार कल फिर मैं आप जी के सामने रखांगा। काफ़ी समा ले ले, खेमा करनी, सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, होर कोई मतलब नहीं। जिस गुरु ग्रंथ साहब नूं असीं मत्था टेक रहे हैं इहदी समझ होवे, जिस सतगुरु नूं असीं मत्था टेक रहे हैं इसका बोध होवे। ये शब्द ने और ब्रह्मंड दे च व्यापक ने।
जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਪਲੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ। सदा अंग संगे अभंगंग विभूते, गुरु मेरे संग सदा है नाले। बस सिर्फ वेखण वाली अख होवे, गुरु सदा संग है। सिर्फ वेखण वाली अख होवे, प्रभु सदा संग है। ये विचारां फिर आप जी के सामने भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी ज्ञान